It's got essays from Himanta Da and Kiran Rijizu and Pema Khanduji as well. So how did this book come around for you? See, one of the key achievements of Modi ji as he completes 10 years in office is the complete positive transformation of our northeastern states. तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसको मतलब नहीं बताना जो है देश के साथ नाइंसाफी होती। और नॉर्थ ईस्ट का जो विषय था वो हम दोनों को काफ़ी फैसिनेट कर रहा था, क्योंकि जो कहानियाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में आती हैं वो बहुत ही आंशिक कहानियाँ होती हैं। जो मेन डेवलपमेंट हो रहा है या जो परिवर्तन लोगों के जीवन में हो रहा है, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वहाँ की जनता महसूस कर रही है मोदी जी की कार्यकाल, मोदी जी के शासन के जरिए, वो पूरी दुनिया तक पहुंचाना मेरे ख्याल से हमें लगा कि हमारा दायित्व है। Actually, a number of things. What a phenomenal transformation has happened in the Northeast region. Infrastructure, connectivity, etc. And it was clear that none of this existed before. So that's why we make that statement, because it's shocking to me what came out while researching and doing this book is that nothing has happened there in the last 60 years. How far behind that region was, how disconnected it was from Delhi and the mainstream of India. Not only I think it was disconnected by heart and mind, I think it was in a sense physically disconnected because there genuinely wasn't infrastructure. One thing is to talk about connectivity, but till you give them airports, railway lines, bridges, etc., you won't see that. So just as a quick anecdote to your thing, there's the Bhupen Hazarika Bridge in Assam. It's a 9.1 kilometer bridge across the Brahmaputra. So actually standing on it physically and seeing that is awe-inspiring, one. And when we spoke to a lot of people around that, you get to hear real stories. That a journey that used to take 1 day, 2 days, these have all been cut down to 20 minutes, 30 minutes. We're used to seeing bridges living in Mumbai, Delhi, Pune, all that. But many of these have been totally transformational. Hi, Namaskar. मेरा नाम है अर्जुन सिंह and I welcome you to another episode of the Pamphlet Podcast. आज we are going to discuss this book, Modi's Northeast Story. The foreword has been written by J.P. Nadda ji, the president of the Bharatiya Janata Party, and it's edited by Tuhin Sinha and Aditya Pitti. Welcome to the show. Looking forward to this conversation. In fact, let me run through an introduction of both our authors, क्योंकि both of you are so well accomplished. I think if I give it to you, तो बहुत समय लग जाएगा आप दोनों के इंट्रोडक्शन करते वक्त. इनफैक्ट तोहिन जी का, आई वाज लुकिंग थ्रू हिज विकी पेज अर्लियर, ही इज़ गॉन थ्रू सो मच essentially in his career and been a successful writer himself in multiple aspects. So Tuhin ji is a best-selling author, columnist and politician. He is the national spokesperson of the Bharatiya Janata Party. And he's written many books, including The Legend of Birsa Munda and The Great Tribal Warriors of Bharat. Aditya ji is an entrepreneur. I remember when I met him first, he was very forthcoming in accepting that he comes from business, and book writing essentially happened for him. He's been an angel investor with interests in politics, public policy, and nation building. Welcome both of you to the show. I look forward to this conversation. Tell me, how did this book come around? Because I believe there was a significant gap. Since 2014, we've seen many conversations happening about India's development story, पर नॉर्थ ईस्ट की कहानी बहुत मिसिंग थी. इनफैक्ट 2014 से पहले भी हम अगर हम बात करें तो जितनी भी पॉलिटिक्स थी और पॉलिटिक्स के आसपास की जो डिबेट्स और डिस्कशंस थी वो दिल्ली पे बहुत ज़्यादा केंद्रित होती थी. तो नॉर्थ ईस्ट तो बहुत दूर की बात है कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में कैसे आए. So I was looking forward to a book like this. So thank you very much for writing it. It's got essays from Himanta Da and Kiran Rijizu and Pema Khanduji as well. So how did this book come around for you? See, one of the key achievements of Modi ji as he completes 10 years in office is the complete positive transformation of our northeastern states. तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसको मतलब नहीं बताना जो है देश के साथ नाइंसाफी होती. तो जब हम पहली बार पिछले साल मिले और एक कॉमन फ्रेंड है आशीष चंदुरकर जिनसे मेरी बात हो रही थी और उन्होंने कनेक्ट किया था हमें, तो हम
इनिशियल स्टेज में हम अब यही डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा एक ऐसा आइडिया हो सकता है जिस पर कि 1 साल के अंदर जो है इस इलेक्शन ईयर में किताब निकाली जा सकती है। और नॉर्थ ईस्ट का जो विषय था वो हम दोनों को काफ़ी फैसिनेट कर रहा था, क्योंकि जो कहानियाँ मेन स्ट्रीम मीडिया में आती हैं वो बहुत ही आंशिक कहानियाँ होती हैं। जो मेन डेवलपमेंट हो रहा है या जो परिवर्तन लोगों के जीवन में हो रहा है, जो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस वहाँ की जनता महसूस कर रही है मोदी जी के कार्यकाल, मोदी जी के शासन के जरिए, वो पूरी दुनिया तक पहुंचाना मेरे ख्याल से हमें लगा कि हमारा दायित्व है। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड यस, आई मीन वी वर वेरी अवेयर ऑफ आवर लिमिटेशंस। हमें पता था कि हमने कोई बहुत गहरा अध्ययन नहीं किया नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो एक कम समय में ये ज़रूरी था कि नॉर्थ ईस्ट में जो लोग सबसे नज़दीकी तौर पर इस नॉर्थ ईस्ट के ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े हैं या जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के इस ट्रांसफॉर्मेशन को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है, उनकी ध्वनि में उनके द्वारा ये कहानियाँ लिखी जाए तो उसकी विश्वसनीयता, उसकी क्रेडिबिलिटी अधिक होगी। तो इस सोच के साथ पहला चैप्टर हालांकि हमारा है, हमने इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखा है, हमने एक क्यूरेटर के तौर पर इसको संजोया है। That's how this book was conceived. But Aditya, you've written the book's dedication is dedicated to the 4.7 crore people of our northeastern states who are finally at the forefront of Bharat's resurgence. I understand well enough that you've not had the chance to research per se all these states in this entire region, but through your experience and through your journeys, through the essays that you've edited, why do you say that they're finally at forefront of Bharat's resurgence? What's missing here, or what has been missing? Arjun, a number of things. I unfortunately have not seen the before of what happened in Northeast, but after traveling there extensively while researching this book and meeting some of our, people who've written essays in the book, I realized that what a phenomenal transformation has happened in the Northeast region. Infrastructure, connectivity, etc. And it was clear that none of this existed before. So that's why we make that statement, because it's shocking to me what came out while researching and doing this book is that nothing has happened there in the last 60 years. How far behind that region was, how disconnected it was from Delhi and the mainstream of India. And not only I think it was disconnected by heart and mind, I think it was in a sense physically disconnected because there genuinely wasn't infrastructure. One thing is to talk about connectivity, but till you give them airports, railway lines, bridges, etc., you won't see that. So just as a quick anecdote to your thing, there's the Bhupen Hazarika Bridge in Assam. It's a 9.1 kilometer bridge across the Brahmaputra. So actually standing on it physically and seeing that is awe-inspiring, one. And when we spoke to a lot of people around that, you get to hear real stories that a journey that used to take 1 day, 2 days, these have all been cut down to 20 minutes, 30 minutes. We're used to seeing bridges living in Mumbai, Delhi, Pune, all that. But many of these have been totally transformational. Interesting. So even while you were working on it, आपको ये अंदाज़ा था that you are working on this as a story? क्योंकि मुझे बहुत बड़ी स्टोरी लगती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टोरी पे. इनफैक्ट मैं आपको सही बताऊँ तो लास्ट ईयर आई हैड ड्राफ्टेड ब्रॉड कन्फाइंस ऑफ अ प्रोजेक्ट जो मैं भी सोच रहा था कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इतनी मिसिंग है ये स्टोरी कि चाहे आप बी इट बॉर्डर इशूज़ और यू स्पीक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. Were you also, why do you think this is such a huge story? ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेटिव हुआ है since 2014? Because we see कि देखिए क्या हुआ है उससे पहले हमें समझना होगा कि क्या गलतियां वहाँ पे हुई थी जिसका असर जो है अभी तक लोगों की साइकी को प्रभावित कर रहा था या अभी तक जो है उनका मनोबल तोड़ रखा था. 1962 में आपको याद है कि जिस प्रकार से जब उस वक्त NEFA था, मतलब वो अरुणाचल तो उस वक्त होता नहीं था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो उस वक्त असम का एक हिस्सा हुआ करता था. जब वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट को चाइनीज ने मतलब इंट्रूड किया तो नेहरू जी ने बहुत ही आसानी से कहा देश को संबोधित करते हुए कि माय हार्ट गोज आउट टू यू, जिसका एक बहुत ही गलत मतलब निकाला गया था और लोगों का मनोबल बिल्कुल टूट गया था. तो जिस कैरसनेस के साथ नेहरू जी ने कहा था,
मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक भूल था। दूसरा, 1965 में जिस प्रकार से तब के मिजोरम, जो उस वक्त असम का एक हिस्सा था, इंदिरा गांधी ने आईएएफ के द्वारा हालांकि एमएनएफ पे प्रहार किया था, उसमें सिविलियन डेथ्स हुए थे। और तीसरा, 1984 में नेल्लई मैसेकर में जिस प्रकार से 1700 लोगों को एक दिन में जिनकी जाने गई थी, और उस वक्त की वहाँ की कांग्रेस सरकार जो है बिल्कुल मूक दर्शक बैठी रही। तो इन सभी ऐतिहासिक गलतियों ने वहाँ के लोगों का मनोबल तोड़ दिया था, जिसको टिरनी ऑफ डिस्टेंस के तौर पर कांग्रेस जस्टिफाई भी करने लगी थी, दूरी की त्रासदी। और ये लगभग जो है 1998 तक चलता रहा। सबसे पहली बार वाजपेयी जी की सरकार ने एक सुधार करने की कोशिश की और एक बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। लेकिन 2014 में पहली बार एक स्पष्ट नीति के तहत वहां के 8 राज्यों में, देखिए 4 लाख करोड़ का कैपेक्स, वो अभूतपूर्व है। उसका असर आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जहां 8 एयरपोर्ट्स थे वहां 17 एयरपोर्ट्स है। कोने कोने में सीमलेस कनेक्टिविटी है। नेशनल हाईवे जो राजमार्ग है हर जगह आपको मिलेगा। जो जगह आपको आज से 10 साल पहले गुवाहाटी से अरुणाचल के जो ईस्टर्न बॉर्डर्स है वहां तक पहुंचने में लगभग 36-40 घंटे लगते थे, वो आज आप सेम डे ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उतनी बेहतर एयर कनेक्टिविटी है। अरुणाचल में 3 एयरपोर्ट है और कई जगह वहां पे जो है फ्लाइट्स गुवाहाटी से लोकल कैरियर्स जो है ऑपरेट करते हैं। उसी प्रकार से नल से जल कार्यक्रम में जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जो हिली क्षेत्र है नागालैंड के या मणिपुर के या अरुणाचल के, उसमें लगभग 100% जो है सफलता हासिल करना, मेरे ख्याल से वो सारी चीजें जो है, एक चैप्टर है इसमें आशीष चंदोरकर जी का, जिसमें लिखा है उन्होंने कि किस प्रकार से कोविड संकट के दौरान पहाड़ों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो वैक्सीन पहुंचाएगी, जिससे कि 100% जो है वैक्सीनेशन हो जाती। तो ये सारी चीजें जो है, जब तक कि इसको ह्यूमनाइज करके लिखा नहीं जाता तब तक, और ये केवल नॉर्थ ईस्ट तक सीमित नहीं है। आई थिंक दिस विल प्रोवाइड अ डेवलपमेंटल पैराडाइम और अ डेवलपमेंटल मॉडल फॉर world over. Leaders and students of politics all over the world would get inspired reading this. The same can be applied to any remote area of Africa also. Interesting. You made a mention of 1984 में और 83 में जब 1700 लोगों की जान गई। 84 में हुआ था। 84 में। सो कितनी कमाल की बात है ना, हम दिल्ली में बैठे हैं, हम 84 की जब भी बात करते हैं हम दिल्ली में सिख राइट्स की बात है। मैं बाद में जो है सेपरेटली आपसे जिक्र करूंगा कि जो लोग आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो उन्हीं क्षेत्रों से निकाल रहे हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाज द वर्स्ट इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द अन्याय ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, और आज ये लोग जो है न्याय यात्रा वहीं से निकाल रहे हो। आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी विडंबना है। बट सो मतलब प्राइम मिनिस्टर को, आई कांट गिव एनीबडी एल्स अ क्रेडिट, बट द प्राइमरी क्रेडिट हैज टू गो टू द प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उससे पहले किसी की शायद इमेजिनेशन में भी नहीं था कि जैसे आपने बताया दूरी की त्रासदी, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले किसी ने भी इतने ट्रिप्स नहीं किए नॉर्थ ईस्ट में, किसी के लिए वो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था नॉर्थ ईस्ट। उस रीजन के लिए चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एयरपोर्ट्स की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, जब भी कभी मेंशन होता था तो वो चिकन्स नेक कॉरिडोर करके उसे रेफर करके। मैं जस्ट इसका संक्षेप में जवाब देता हूँ, उसके बाद आदित्य जी कैरी ऑन। देखिए अंत्योदय का जब जिक्र होता था पहले, वो इंसानों तक सीमित होता था। The last person in the queue should be the first to should have the first right over resources. प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके आयाम बदल दिए हैं, वो रीजन्स को भी अब अप्लाई करता है। तो जो रीजन, देखिए जब हम विकसित भारत के लक्ष्यों की तरफ तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और संभवतः अगले 20 वर्षों में अगर हम $40 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट रख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि अब वो ग्रोथ जो है टियर 2 टियर 3 सिटी से आएंगे, उन क्षेत्रों से आएंगे जो अब तक बैकवर्ड थे। तो जहां 2.6% होता था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जीडीपी में परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, अब पिछले 10 वर्षों में वो आंशिक रूप से बढ़ा 3% हो गया। लेकिन आने वाले वर्षों में आप एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीज उसमें पाएंगे, और ये जो प्रधानमंत्री जी का विजन है वो नॉर्थ ईस्ट तक सीमित नहीं है। यही ग्रोथ आप देख पाएंगे लद्दाख के अंदर, यही ग्रोथ अगले 2 वर्षों में आप देख पाएंगे लक्षद्वीप के अंदर। So I think it requires immense vision on the part of the Prime Minister to execute, to bring, like I mentioned, the concept of Antyodaya, to expand it from individuals to regions.
And I think that is where the difference is humongous, and the quality of life has changed in all those regions. Aditya, so coming to you, so naturally, like you mentioned, there are many different sectors and themes जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने फोकस करके ये इंश्योर किया कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्स अराउंड सून. What do you think are 2 or 3 or perhaps more of these specific regions and sectors जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने फोकस करके किया, because उसी का consequence है that this book is also taking shape now. Yeah. Adding to a little bit of what Tuhinji said, I'm a business person and an industrialist, so I look at it, a lot of things with that lens. One, I definitely feel that the Northeast development by Honorable Prime Minister gives an insight into his transformation strategy and development model. And it's right what Tuhinji also said, this is going to serve as a template for development in other regions. Reason also why it will serve as a template is because I again view in business terms the development of Northeast like a greenfield project. Kuch hua hi nahi tha. So it's really from the start, and this is what is interesting about this template. I think what's apparent from not only the book and studying what Modi ji has done, it's all about infrastructure. Certain things in India, we are very enterprising. There's a lot of enterprise. People don't, businessmen don't get bogged down by small issues. We find a way around it. But 2 things we need the government to provide is infrastructure and law and order. Those are, necessary conditions to build businesses, services, bring about development. So I think this is what Modi ji has done. And it is clearly shows also in our research and in the book. Till you don't get the airports, bridges, railway lines, how do you get about start moving there? And also law and order. So there's been a lot of, I think, stress there. But I think good of you to mention law and order. And I think Tuhinji, we were discussing conversation start होने से just पहले कि मणिपुर एक मुद्दा आता है जब हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं. The state has seen tremendous challenges over the last 1 year. How do you see that? क्योंकि एक तरफ we are trying hard to make a conducive environment for development. अर्जुन जी, जो हिंसा का दौर मणिपुर ने पिछले 1 वर्ष में देखा है, निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. लेकिन एक पूरे क्षेत्र में, ये केवल मणिपुर तक सीमित नहीं है, सारे राज्यों में एक इतिहास रहा है अनेकों एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का. इनफैक्ट रामी देसाई जी का एक चैप्टर है जिसमें वो सबसे लंबा चैप्टर हो, जिसमें बहुत ही डिटेल में लगभग सारे मेजर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स का जिक्र किया गया है, क्रॉनिकल किया गया है. अब आपको जानकर हैरानी होगी, बल्कि आपको हैरानी नहीं होगी, वोक एलिमेंट्स को ज़्यादा हैरानी होगी. आप तो फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री जी को, तो आपको हैरानी नहीं होगी. लेकिन पिछले 10 वर्षों में अधिकांश ऐसे डिस्प्यूट्स जो हैं काफ़ी डिलिजेंटली सुलझाए जा चुके हैं, पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुके हैं. दैट इंक्लूड्स बॉर्डर डिस्प्यूट्स, दैट इंक्लूड्स इंसर्जेंट ग्रुप्स गिविंग अप आर्म्स एंड जॉइनिंग द मेन स्ट्रीम. हाँ, मणिपुर जो है एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है. देखिए, कुछ परछाइयाँ, कुछ काली परछाइयाँ जो हमें लग रहा था कि वो जिनको जो है निपटाया जा चुका है, वो पूरी तरह निपट नहीं पाई थी. इनफैक्ट जो 2017 मार्च से 2023 अप्रैल तक का एक फेज था, 6 साल 1 महीने का, incidentally that is also probably the longest phase of peace and unhindered peace and progress for that region. तो तमाम ऐसे डेवलपमेंटल कार्य हुए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कार्य हुए. साथ ही 2 ऐसी चीजें भी हुई जिस पर कि अनसस्पेक्टिंगली हमने शायद अंदाजा नहीं लगाया था कि उसका क्या हश्र हो सकता है. एक तो जो इलीगल पॉपी कल्टीवेशन था, उस पर राज्य सरकार ने बहुत ही अग्रेसिवली उसको रोकने का प्रयास किया था और काफी हद तक कामयाब भी हुई थी. दूसरा, जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत डायरेक्ट थाईलैंड तक जो एक हाईवे का निर्माण हो रहा है, निश्चित तौर पर जब वो म्यांमार के थ्रू गुजर रहा है तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें जो हैं उससे विचलित हुई हैं. तो उन पर मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो इशारा मैंने दिया है वो काफ़ी है ये बताने के लिए कि कुछ इंटरनेशनल एलिमेंट्स उस पूरे मणिपुर के प्रकरण में उनका हाथ रहा है. जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड
the chapter on Manipur written by this very enterprising entrepreneur, Niranjan, will give a perspective on the key developmental initiatives of the government. And I'm hoping that, going ahead, the violence will be completely behind this. बट देन ऑल्सो ब्रिंग्स इट क्योंकि जैसे आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात की एंड हाउ नॉर्थ ईस्ट इज कनेक्टेड टू अदर नेशंस, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बहुत बड़ा मुद्दा था नॉर्थ ईस्ट स्टोरी के अंदर, बी इट असम, बी इट अरुणाचल, बी इट मणिपुर, बी इट इन नागालैंड, सब क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट में रहे थे. वुड यू क्रेडिटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कि उस पर बहुत एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल पाए हैं हम? क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है फ्रॉम हाउ द सिचुएशन वाज परहैप्स बिफोर 2014? Well, absolutely. See, a demography war, a conscious demography war was always encouraged by the previous Congress governments. तो इनफैक्ट जो बांग्लादेशी इलीगल बांग्लादेशीज उनको बसाने का काम ही कांग्रेस ने किया है. आपको पता होगा 1979 में सबसे पहली बार जो है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जब बाई इलेक्शन हुआ तो पाया गया कि वहाँ 40 से ऊपर परसेंटेज जो लोग हैं वो इलीगल बांग्लादेशी. तो कांग्रेस का एक इतिहास रहा है डेमोग्राफी को डिस्टॉर्ट करने का, उस पर एक अंकुश लगाया गया है. डॉक्टर अंकिता दत्ता का एक चैप्टर है जो डेमोग्राफी वॉर को एड्रेस करता है असम का, जिसमें बहुत डिटेल में उन्होंने ये बताया है कि किस प्रकार से हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने अग्रेसिव तौर पर इस डेमोग्राफी के डिस्टॉर्शन को रोकने का काम किया है. दूसरी ओर जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, अभी 2 हफ्ते पहले माननीय गृह मंत्री ने ये घोषणा की थी कि लगभग 1300-1400 जो पूरा म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर है उसको फुल प्रूफ फेंसिंग उसकी की जाएगी. तो मेरे ख्याल से देखिए, इंडिया जैसे देश में वी कैन नॉट चूज आवर नेबर्स, एंड फैक्ट इज दैट ऑल अराउंड वी आर सराउंडेड बाय नेबर्स हु आरंट essentially the best of friends. But then I think that throws up a challenge which has been addressed very well, very practically by our honorable Prime Minister in the last few years. एंड हाउ अबाउट हिस्टोरिसिटी और कल्चरली उस रीजन की जो कहानी थी वो काफ़ी समय से मिसिंग थी, जैसे मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन में नहीं आती. दैट वी आर सिटिंग इन दिल्ली एनसीआर एंड चैटिंग अबाउट नॉर्थ ईस्ट, ये बहुत टाइम से मिसिंग था. क्या कल्चरल एस्पेक्ट को उभारने के लिए, बी इट भारतीय जनता पार्टी, बी इट द लीडरशिप दैट बीजेपी पुश्ड इन दैट रीजन, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, कौन कौन से आयामों पर उन्होंने काम किया और क्या वो कहानियाँ फाइनली आना स्टार्ट हो रही हैं? देखिए, ये सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हम मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की कहानियाँ नहीं आ रही थी. वो केवल जो है एक आर्टिफिशियल तौर पे रोका गया था. नॉर्थ ईस्ट वो जगह है जहाँ रुक्मिणी, जिनका विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ था, वो अरुणाचल प्रदेश से है. और आज भी हर वर्ष मार्च अप्रैल के लगभग एक रिचुअल होता है जिसमें अरुणाचल के उस कम्युनिटी के लोग जो हैं, जो रुक्मिणी जी के बिरादरी से हैं, वो बारात लेके आते हैं गुजरात उनकी. ठीक है, ठीक उसी प्रकार जो है चित्रांगदा, जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था महाभारत में, वो मणिपुर की है. तो इतिहास, ये तो कांग्रेस की एक सोच है, कांग्रेस की एक प्रवृत्ति है कि हर क्षेत्र को या हर एक तरह से एक सॉफ्ट सेपरेटिज्म वो एनकरेज करते हैं. that these regions don't intrinsically belong to us. But yes, I think that has largely been corrected. जिस प्रकार से तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है बनारस में, उसी प्रकार से कई ऐसी चीजें प्रधानमंत्री जी पिछले साल जो हैं लगभग 30 कम्युनिटी लीडर से मिले थे अरुणाचल प्रदेश के. जगह जगह जो हैं वो एक कल्चरल समन्वय कायम करने का उन्होंने प्रयास किया है. तो डेफिनेटली इट्स वर्क इन प्रोग्रेस. और लचित बोरफुकन की जो लेगेसी है, जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने भी और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसके बारे में चर्चा की है, उसको आम जनमानस में लाने का काम किया है, ये सारी चीजें इस बात का कि पुष्टिकरण करती हैं कि निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम भारत से जोड़ने का एक सक्षम प्रयास हमने किया और पूरी तरह से कामयाब भी हुए. So I'll add a bit to it. Yes. I think now the mainstreaming of the culture, tourism, etc. will happen. It's an unusually beautiful place. Nagaland is known as the Switzerland of the East. We have cultural festivals like the Hornbill Festival. Honorable CM of Assam, Himanta ji, is trying to develop the Kamakhya Devi Mandir.
corridor. So there's lots happening. There has been, I think, a record number of tourists, both domestic and international, now going to Northeast just because of air connectivity and making it easier to travel. My general feeling, it was the first time for me also when I went on my first trip. People are very welcoming, open, young population, very energetic. So I think a lot of these initiatives will soon start mainstreaming from a cultural point of view as well. Even in terms of educational institutes, we visited IIM Shillong. So the premier national institutes are coming up there. So students from all over the country are going there, talking about the region, and I think slowly this will all mainstream now very fast. So a larger integration also of the region. Absolutely. इंडिया के साथ, क्योंकि एक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी सीन के इंडिया के जैसे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को एक अलग ही खेमे के अंदर पढ़ा जाता था. सो वो दैट यू आर्ग्यू कि सीधा सीधा वी आर इन अ टाइम जब वो चीज़ें जो है वो जो डिफरेंसेस हैं आर फाइनली बीइंग ब्रिज्ड. वुड यू आर्ग्यू कि वाज इट डेलिबरेटली दैट द कांग्रेस वाज डूइंग इट, और वुड यू से it was never a priority for the Congress party or Congress party's leadership to integrate Northeast to the larger India and bring those conversations out? इतिहास के समझ का अभाव, ये मौजूदा जो आयातित गांधी परिवार है, it's an imported गांधी परिवार. So they have a fundamental dearth of understanding about Indian ethos, about Indian history. So a lot of their thought process stems out of that misunderstanding or lack of understanding of Indian ethos. उनको समझ ही नहीं है इतिहास का, उनको समझ ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है पिछले महाभारत के काल से, जो उसका एक कनेक्शन रहा है भारत का, उसकी समझ ही नहीं है. तो निश्चित तौर पर, और आज जो कांग्रेस पार्टी है वो एक दूसरे लेवल पर, सिंस दे आर हॉबनॉबिंग विद द एक्सट्रीम अल्ट्रा लेफ्ट एलिमेंट्स, निश्चित तौर पर उनके मन में एक शरारत की भावना भी आ गई है. तो वो चाहते हैं, उनको इट सूट्स देयर पॉलिटिक्स टू से दैट द अदराइजेशन, आई यूज द वर्ड अदराइजेशन, इट सूट्स देम कि ये हमारे नहीं है, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, ये हमारे नहीं है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए. लेकिन इसके जरिए जो है एक सॉफ्ट टेररिज्म की जो नींव तैयार करने रखने का काम वही कर रहे हैं, और यही कारण है कि उनको हर जगह से रिजेक्ट किया जा रहा है. तो क्या यही कारण बनता है कि हेमंता ने पार्टी छोड़ी? देखिए, हेमंता जी के अपने कारण थे, वो तो बहुत सारे कारण हैं. उन्होंने कई बार उल्लेख किया है राहुल गांधी के आचरण का, तो वो तो मतलब ही हैज बीन वेरी कैंडिड अबाउट हिज रीजंस. बट यस, आई मीन इट इज, आई थिंक आज की तारीख में हेमंता जी के बाद तो सैकड़ों नेताओं ने छोड़ा. आज सवाल ये उठता है कि है कौन उनके साथ. दैट यू आर अ बीजेपी स्पोक्स पर्सन, ये आपके लिए भी क्वेश्चन बनता है कि कितने सारे व्यक्ति बीजेपी में आ रहे हैं. तो नहीं, अभी और भी बहुत लंबी कतार है, बहुत ही सीमित लोगों को बीजेपी ले रही है. एक प्रक्रिया है, एक ज्वाइनिंग कमेटी है, तो उनका जो है उनको फिल्टर करके लिया जा रहा है. लेकिन फैक्ट है कि आज देखिए, कांग्रेस वाले सिर्फ बीजेपी के पास ही नहीं आ रहे हैं. मिलिंद देवरा जो है वो एकनाथ शिंदे जी की पार्टी में गए, बाबा सिद्दीकी अजीत पवार की पार्टी में गए. तो आज कांग्रेस छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल करियर बचाने के लिए वो लोग कहीं भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं. लवली. Aditya ji, would you say कि in your experience, because you've traveled the region, researched for the book, you've read a lot, and you've gotten into conversations with so many people from the region in order to bring this book around. क्या जो मूलभूत सुविधाएं जिनकी हम बात करते हैं इस देश के अंदर, फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल, क्या फाइनली उनका रिड्रेसल हो रहा है? आर दोज बीइंग कंसिडर्ड अ प्रायोरिटी टुडे बाय गवर्नमेंट्स इन पावर, या कि दिल्ली में बैठकर ये आसान है बोलना कि बदलाव आ रहा है? नहीं, on the ground, I think, when you asked me also about Prime Minister Modi, what I mentioned, infrastructure, etc. But I think his model of development is multi-level. Infrastructure भी है, ease of doing business, entrepreneurship. So he's looking at the top, bottom, all aspects of the pyramid, so to speak. And the fundamental thing has been all these schemes aimed at uplifting the poor, whether it's gas, water, electricity, etc. In fact, anecdotally, the Har Ghar Jal. So even in a far-flung place, Arunachal Pradesh achieved 100% coverage just last month. Okay. So it was a huge achievement, considering also
how challenging it is for a big state like Arunachal with all the challenging geography that it has. So, you're seeing this. And perhaps Prime Minister Narendra Modi is at it with a mission mode approach, because this is what we... Yeah, it's like, one can say semantics. Look East policy became Act East. The word itself is very important. Some can say semantics hai, but I say look to koi bhi look kar sakta hai. But Act East means Act East. Also, even again as a business person, change happens with leadership. Leadership has to show the way. So Modi ji has been to the Northeast 60 times, 60. 60 times? Yeah, 60. Since 2014, since coming to power. 26 May 2014. So, look, it's unprecedented. So what I understand, previous PMs from either zero on hardly any visits to 60 visits itself is telling. In fact, that energizes the entire region. कि जब प्रधानमंत्री कहीं पर जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को एक्टिविटी और मोशन के अंदर लेकर आते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, सारे अरेंजमेंट्स करने हैं. And that is also telling, delivers a message to the bureaucracy, to the ministers, कि भाई get into action mode. It is not going to be the lethargy that perhaps previous governments were known for. Would you say so? देखिए, प्रधानमंत्री जी जैसा व्यक्तित्व 500 वर्षों में एक बार आता है. कल आपको पता होगा कि जिस प्रकार जो है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी. Imagine at the fag end of his second term, when another prime minister or any other prime minister in his place would have been worried about the elections. जिस निरंतरता और जिस अविरलता के साथ वो आगे की सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से मतलब उसके लिए आपको वाकई एक तपस्वी का मन आपके अंदर होना चाहिए. I think that's what makes him different. तो जब वो जाते हैं 60 बार अगर वो गए हैं और अलग अलग क्षेत्रों में गए हैं, वहाँ के लोगों के साथ जो है घुल मिलकर उन्होंने कहीं लोकल संगीत में पार्टिसिपेट किया है, तो वो किसी एक मंशे एक मतलब कैलकुलेशन के तहत नहीं किया है कि यहाँ से ये वोट मिलना चाहिए. He genuinely feels and he genuinely belongs to every part of the country. I think that is what sets him apart. तो जब हम मेघालय में थे, उस दिन जो है आखिरी संडे था और मन की बात कार्यक्रम हो रहा था और हमें लगा कि ये तो मतलब यहाँ ज़्यादा लोग नहीं उसमें दिलचस्पी ले रहे होंगे, लेकिन जिस प्रकार संडे को लोग जो हैं ढाबों में या जब हम हाईवे से ट्रैवल कर रहे थे तो देख रहे थे कि लोग पूरी तरह से लीन होकर मन की बात सुनते हैं वहाँ पर भी. तो मेरे ख्याल से उनकी एक्सेप्टेंस जो है नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही है जितना कि किसी भी अन्य देश के अन्य भाग में. और आई थिंक द टू वर्ड्स जिस निरंतरता और अविरलता के साथ वो काम करते हैं, मतलब वो he doesn't think about immediate targets. I think the larger transformation of the country and the larger reforms needed in the society are his driving. I mean, what the things which drive him ahead. Fair enough. Aditya, coming from, since you come from a business background, an entrepreneurial nature, we've spoken about infrastructure development that has happened in the region for the last over the last 10 years, but of course there are cross-border challenges also. I want you to look at it from an Act East perspective and tell me what is laid ahead for the entire region in the Northeast. I don't want to bucket it and essentially discuss it in states, but क्योंकि international border भी है, there's immense security challenge also. China on the Arunachal side also. What are the next possible entrepreneurial or ventures क्या हो सकते हैं, और what is laid ahead for the larger northeastern region now? Sure. So I'll just answer one thing first about this border stuff. So the Kiran Rijiju talks a lot about it, the Vibrant Village program. So they've tried to ensure that there is good development even in the bordermost villages, etc. That brings to the mainstream. It generally helps. I think the foundation for development, according to me, has been laid. Mm-hmm. What I had stressed earlier, with infrastructure coming, connectivity coming, if you think about a building, you're in Noida, you're seeing a lot of construction activity here. It always is tougher for a building to come out of the basement, and till the foundation is built. So in some sense, foundation khada ho gaya. Now the building is going to come up rapidly. The government will also push. There'll be initiatives both at central and state levels. But once I told you, once the
there are airports, you know, the businessmen will come themselves. So now I think a lot of manufacturing services businesses will start going there because it's a huge untapped area. And you know, immediately I can tell you the things that will boom immediately are stuff like tourism. You know, there's going to be a lot of tourism there. It's a fundamentally, I mean, a beautiful place. Lots of interesting things. Religious tourism will come. A lot of agro-related businesses. You know, whether it's bamboo, palm oil, lots of stuff happening. So there are many businesses that are naturally conducive to the Northeast, which will immediately come, and then slowly lots of other businesses will come in. Again, I mentioned it's a young, young population there. Good English-speaking skills as well. There's no reason why services can't come there. You know, whether it's startups, IT, software, all these things. I feel now is when we'll start seeing all of this coming there. फेयर इनफ. बट सुनील जी, यू नो वेरी वेल कि जैसे कोई भी बिजनेस आता है, एंटरप्राइज नहीं आती है, तो अपने साथ एक नई सोशल चैलेंजेस भी कई बार ले आती है. हाउ डू यू थिंक, लुकिंग एट इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स, कितना इजीली ये मैनेज हो पाएगा, और आर वी लुकिंग एट सम चैलेंजेस इन नियर फ्यूचर? देखिए, मणिपुर छोड़ के बाकी सारी जगहों पर, सारे राज्यों में ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स लगभग पूरी तरह से सॉल्व हो चुके हैं. In fact, Arunachal Pradesh is, if you travel to Arunachal Pradesh, that is the hub of peace and hub of security, and you get a very positive feeling over there. So I don't think that challenge exists anymore. कई चीज़ें जो हैं, देखिए, काम नहीं करने के लिए लोगों को बहाने चाहिए होते, तो कांग्रेस सरकार ने कई चीज़ें जो हैं वो प्रोपोगेट की थी, कई इल्यूशंस और कई गलत धारणाएं उन्होंने प्रोपोगेट की थी, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहते थे. उनके लिए केवल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एक ATM का काम करती थी, ठीक है, और इलीगल ठेके देने में कांग्रेस की सरकारें, आपको पता है, सबसे अव्वल नंबर पे होती थी. तो मशहूर है पूरे देश में. वो सोच बदली है. आज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स which come under AFSPA, Army Special Forces Protection Act, are at its lowest, and that will only, probably in the time to come be zero. That may take a few years, but so I think constantly we are heading towards the northeastern states being an abode of absolute and permanent peace. जो, जैसा कि मैंने कहा, मणिपुर में जो हुआ वो एक अपवाद है, and I think that was ill-timed, and that has taken us back by a year or so. But जो हमारा agenda है good governance का, that remains intact. In fact, one of the chapters in the book is written by a lady entrepreneur who operates out of a remote region in Arunachal Pradesh, Tagirita. She has written about, she has set up an organic winery. Wow. तो उसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा है. और देखिए, अरुणाचल के बारे में आपको एक और विचित्रता समझनी पड़ेगी. अगर आप कभी गए हो अरुणाचल, तो ईटानगर जो है वो डिब्रूगढ़ से काफ़ी पास है. वो एक असम, बल्कि इनफैक्ट जो है असम के कुछ क्षेत्र जो है, यहाँ से अगर आप ईटानगर जाएं तो असम के कुछ क्षेत्र जो हैं वो ज़्यादा दूर हो आप पाएंगे ईटानगर से. ईटानगर के बाद जो अरुणाचल के जो पूर्वी बॉर्डर्स हैं वो और 500 किलोमीटर दूर है. तो कई बार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो छोटे छोटे कामों के लिए जब उनको स्टेट कैपिटल आना पड़ता था, तो 24-36 घंटे, और मतलब आपको पता है अरुणाचल में 2-3 महीने बर्फ भी पड़ती है. जनवरी फरवरी में अच्छी खासी बर्फ भी पड़ी थी, तो लगभग 24-36 घंटे उनको लगते थे ट्रैवल करने में. आज पेमा खांडू जी के इनिशिएटिव्स पर अरुणाचल इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स, has taken the lead in digital assimilation. तो जो डिजिटल गवर्नेंस का जो रिकॉर्ड है उनका, वो बिल्कुल ऊंची श्रेणी का है. और पर्सनली जो है, जो पेमा खांडू जी का मैंने इंटरेस्ट देखा है कि छोटे छोटे जिलों में जाकर पर्सनली ये देखना कि वहाँ के जो रिकॉर्ड्स हैं, गवर्नेंस रिकॉर्ड्स, वो डिजिटलाइज हुए हैं कि नहीं, उससे ये ट्रैवल टाइम जो है या ट्रैवल करने की आवश्यकता खत्म हो गई है. तो जिन चीज़ों के लिए 24-36 घंटे बर्बाद होते थे, आज वो बैठे बैठे हो रहे वहाँ. इंटरेस्टिंगली, पॉलिटिकली स्पीकिंग, तो त्रिपुरा की भी जो टर्न अराउंड है इज़ एन रिमार्केबल स्टोरी इन इटसेल्फ, कि कम्युनिस्ट सरकार को इतने टाइम बाद निकालना वहाँ पे. बट वेल,
I think that's a great value addition to understanding the narrative on Northeast. So I congratulate both of you for doing such a remarkable job. And I recommend everyone to buy this book, take a quick read, get a sense of how Northeast has transformed over the last 10 years. And please continue to tune in. And thank you very much. Thank you so much. Thank you.